विकास का वादा कर चला है रीप किसानों को लेकर। चारों तरफ हो हरियाली, घर घर लाए वो खुशहाली। दुनिया भर में विश्वास जीत आधुनिकता का है ये प्रतीक। विकास का वादा कर चला है रीप किसानों को लेकर। रीप दुनिया भर में किसानों को विकास के पथ पर लिए चले जा रहा है। मैं सल्फर मिल्स ग्रुप की तरफ से आप सभी बिजनेस पार्टनर का स्वागत करता हूँ। आप सभी के सुझावों पर हम पहले भी कई अपने पेस्टिसाइड पोर्टफोलियो में, फर्टिलाइजर पोर्टफोलियो में कई प्रोडक्ट लाते रहे हैं और आगे भविष्य में भी लाते रहेंगे। उसी एक प्रयास के तहत हम अभी इस बार 4 मॉलिक्यूल 6 ब्रांड में लेके आए हैं। अगर ये कोविड सिचुएशन नहीं होती तो इन प्रोडक्ट को हम आपके बीच में आकर आपके साथ लॉन्च करते, और पर हमें पता है कि आप दिल से सदा सल्फर मिल्स के साथ हैं और भविष्य में भी रहेंगे। तो उसी एक विश्वास के तहत हम आज इन 4 नए प्रोडक्ट्स का लॉन्च करने जा रहे हैं। इस पूरे प्रोग्राम का सीक्वेंस कुछ इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हमारे सीईओ मिस्टर वीरभद्रम आपसे अपने मन की बात कहेंगे। उसके बाद हम थोड़ा जो प्रोडक्ट आज हम लॉन्च करने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे, और उसके बाद फिर आपके प्रश्नों और सुझावों को सुनेंगे। Dear friends, my name is Veerabhadram. I am CEO of Sulfur Group of Companies, Sulfur Mills, Sumil Chemicals and R3 Crop Care. I am talking to you through video because of the COVID problem prevailing in the country today, and I am sure all of you are staying healthy and safe at your homes. You are aware that Sulfur Mills is pioneer in introducing very high technology formulations. You are aware of Fertis and Cosamel introduced long ago, the WDG formulations of sulfur. Then a couple of years back, you know that we have introduced the advanced formulation of zinc in the name of Technojet and Jinda. You are aware this product has done fantastically in the field, and the results are all to be seen everywhere in various demonstrations. And also you will be glad to know that the zinc content in the output after using Technojet and Jinda has gone up substantially. Nowadays you hear people talking about taking zinc nutrient for immunity boosting in human beings. So in the same line of thought process, we are glad to announce we are introducing 3 more products in Sulfur Mills and 3 more products in Sumil to boost up our product range, and also to help and the overall agriculture gets benefited. The products that are coming under Sulfur Mill are Java Super, Bultan and Scorpio. Java Super and Scorpio are insecticides, and Bultan is a fungicide of WDG formulation. Similarly, in Sumil, we are introducing Pyrofen, an insecticide, and Fusion, another combination insecticides, and Vantage, WDG formulation of fungicide. So Sulfur Mills is sort of coming up with 3 products in each of the categories of brands to help the improve our range of products and to help the dealer community to serve the farmer better. We are sure you will support us even with these product launches, and we apologize for the sort of e-launch. Normally, we do a lot of big meetings and then launch products, but unfortunately because of COVID situation we have to change ourselves and use digital means, and therefore this is our attempt to e-launch 3 products, 2 insecticides and 1 fungicide in sulfur, and 2 insecticide and 1 fungicide in Sumil through the e-launch program. Once again, thank you very much for your attention, and we wish
you and your families and your associates stay safe, stay healthy, and come over the COVID situation in the country. Jai Hind. जावा सुपर ब्रांड नेम के नाम से हम प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, जो कि जिसके बारे में विस्तार से आगे हम आपको बताएंगे। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें सक्रिय तत्व पाइमेट्रोजिन 50 है, और धान की फसल में ही इसका लेबल क्लेम है, और 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो है इस्तेमाल की मात्रा है एक बार में इस्तेमाल के लिए। और इसके अंदर जो SKU साइज हमारे पास है वो 1 किलो, 500 ग्राम, 120 ग्राम और 250 ग्राम, ये 4 हमारे पास SKU है। और पंजाब हरियाणा के हिसाब से बात करें तो 1 किलो और 500 ग्राम का ही जो है बहुतायत से यही 2 SKU है जो इस्तेमाल में है। अगर इसके जो विशेषताएं और खासियत है उसके बारे में विस्तार से अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें 120 ग्राम एकड़ प्रति एकड़ के हिसाब से जो है पूरी डोज जो मात्रा है वो पूरी इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ हमें ये इंश्योर करना है कि जो वाटर कवरेज है वो फील्ड में पूरी तरीके से अच्छे से हो जाए। जो इसका प्रथम छिड़काव है, पहला छिड़काव, वो धान की जो ट्रांसप्लांटिंग के 60 से 65 दिन बाद, मतलब धान की खेत में जो रुपाई हुई है उसके 60 से 65 दिन बाद, जहां पे हम बात करें बूटिंग स्टेज जिसको हम बोलते हैं, तो उस समय इसका इस्तेमाल करना है। और जो दूसरा छिड़काव है वो 75 दिन पे करना है। तो अगर आपके यहाँ अगर किसान के यहाँ अगर BPH की समस्या बहुत ज्यादा नहीं है तो एक छिड़काव में भी कंट्रोल हो जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे BPH की समस्या ज्यादा है तो वहां पे 10 से 15 दिन बाद एक दूसरा छिड़काव भी करवाना जरूरी है। और जैसे ही जो है फसल के ऊपर इसका हम छिड़काव करते हैं और जैसे ही BPH इसके संपर्क में आता है, चाहे निम्फ है या एडल्ट है, तो वो जो है खाना वो बंद कर देता है। ठीक है। और ये BPH की जो सारी स्टेजेस हैं, निम्फ और एडल्ट, ये दोनों ही स्टेजेस को जो है ये कंट्रोल करता है। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसका यूनिक मोड ऑफ एक्शन है, और जो प्लांट होपर है उसका पैरालिसिस हो जाता है और वो खाना जो है वो बंद कर देता है। और क्योंकि इस निम्फ और एडल्ट दोनों को ही कंट्रोल करता है तो ये आगे चल के जो है एडल्ट जो है वो एग लाइंग वो नहीं कर पाते हैं। और ये पौधों के अंदर जो है ट्रांसलेमिनर और सिस्टमिक दोनों तरीके से जो है ये पौधों के अंदर समाहित होता है। और ये जो हमारे जो लाभदायक जीव हैं या जैसे कहें मेमल्स है, मछली है, उनके लिए जो है कम हानिकारक है, तो वो भी एक इसकी विशेषता है। और इस विशेषता के कारण ये हमारी फिलोसफी में भी जो है बिल्कुल तर्क संगत बैठता है। अगर हम फायदे की बाट करें जावा सुपर के, तो ये एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसका 3 वे एक्शन है और ये रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर नहीं है, प्रतिरोधक क्षमता ऊपर में इसके अगेंस्ट जो नहीं है, जो कि एक मुख्य समस्या है ब्राउन प्लांट ऊपर को के लिए जितने भी उत्पाद अवेलेबल है उनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत जल्दी आ जाता है, जो समस्या इसके अंदर नहीं है। और जावा सुपर इसका जो मुख्य जो हमें बात रखने की ध्यान में रखने की जो बात है वो ये है कि हमारा जो टाइमली एप्लीकेशन समय से जो है इसका प्रयोग या छिड़काव बहुत जरूरी है, और जिससे कि हमें जो है बेहतर परिणाम मिले और पूरी तरीके से जो है कंट्रोल हो। जो पहले बताया था आपको 60 से 65 दिन या बूटिंग स्टेज की बात करें, ये जैसे ही प्लांट ऊपर इसके कांटेक्ट में आता है ट्रीटेड प्लांट के, तो वो पैरालिसिस हो जाता है और उसके बाद वो जो है खाना वो बंद कर देता है और एक लेग भी बंद कर देता है, और ये स्टार्वेशन के कारण जो है वो प्लांट ऊपर की जो है डेथ हो जाती है। तो जो स्टेज है, जो रिप्रोडक्टिव स्टेज पे इसका इस्तेमाल हमें करवाना है, जो कि
60 से 65 या 70 दिन ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो है। और अगर जहां पे भी बीपीएच का बहुत ज्यादा इंसिडेंस है या जहां पे बीपीएच की समस्या ज्यादा रही है पीछे के सालों में, तो वहां पे पहले छिड़काव के बाद हमें 10 से 12 दिन बाद दूसरा छिड़काव भी जो है इसका करवाना है, ताकि जो है बीपीएच का नियंत्रण बेहतर तरीके से हो सके। जावा सुपर जो है ये 3 तरीके से जो है 3-वे एक्शन करता है। ये एडल्ट के द्वारा जो एग लेइंग है उसको बंद कर देता है, और एडल्ट और निम्फ जो है उसको पैरालिसिस कर देता है, और पैरालिसिस होने की वजह से जो है वो मृत अवस्था में आ जाते हैं, और ये प्लांट के ऊपर जो है धान के ऊपर फीडिंग करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण जो फसल को नुकसान होना बंद हो जाता है। और ये जैसा कि बताया की सारी स्टेजेस पे काम करता है, और बहुत ही एक यूनिक मैनेजमेंट रेजिस्टेंस मैनेजमेंट टूल है। तो इसका लंबे समय तक और बेहतर परिणाम लेने के लिए है कि सबसे पहले हमें जो है शुरुआती अवस्था में ही इसका इस्तेमाल करना है, और शुरुआती अवस्था में अगर हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं किसान के, ये बहुत ही सुपीरियर, बहुत ही अच्छा और लंबे समय तक जो है बीपीएच का कंट्रोल देता है। और अगर हम इसके पोजीशनिंग की बात करें तो जो टारगेट कस्टमर हमारे हैं वो जितने राइस ग्रोवर्स हैं जिनको की बीपीएच मैनेजमेंट जो करना चाह रहे हैं, बीपीएच के बारे में कंसर्न है, वो हमारे टारगेट कंसर्न है। और इसका जो 3-वे एक्शन है वो हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है। और जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि अभी जो जितने भी केमिस्ट्री जो और केमिस्ट्री अवेलेबल है या जो और प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनके प्रति बीपीएच के प्रति बीपीएच उनके प्रति रेजिस्टेंस जो है बीपीएच के अंदर आ जा रही है, वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। और जो जावा सुपर है पाइमेट्रोजिन 50WG, ये एक सेफर केमिस्ट्री है अभी जो उत्पाद अवेलेबल है उसकी तुलना में। सो पोजीशनिंग स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये है कि फॉर ऑल राइस ग्रोवर्स कंसर्न विद इंक्रीजिंग मीनेस ऑफ बीपीएच, Java Super is the product of choice that provided 3-way solution in controlling all stages of BPH when used as a prophylactic. So prophylactic जो शब्द है इसका मतलब ये है कि हमें इंतजार नहीं करवाना है किसान को कि बीपीएच का बहुत ज्यादा जो है अटैक वो फील्ड में आ जाए और उसके बाद हम इस्तेमाल करें। इसको हमें जैसा कि बताया 65 से 70 दिन ट्रांसप्लांटिंग के बाद शुरुआती अवस्था में ही हम इसका इस्तेमाल कर देंगे, और एक इस्तेमाल के बाद भी अगर हमें लगता है कि बीपीएच की संख्या ज्यादा है तो 10, 12, 15 दिन के बाद दोबारा जो है 120 ग्राम प्रति एकड़ की हिसाब से हमें दूसरा इस्तेमाल जो है इसका करवाना है। अगला जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बुलटोन। थाइफेनेट मिथाइल 70% WDG, जो कि हमारा एक पेटेंटेड उत्पाद है। और थाइफेनेट मिथाइल अगर हम वैश्विक स्तर पे भी बात करें तो फंजीसाइड्स में जो है बहुत यूनिक जो है ये मॉलिक्यूल है थाइफेनेट मिथाइल, और बहुत सारे जो है ये फंगल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है। हमारी जो सल्फर मिल्स की जो विशेषता है वो ये है कि हम WDG वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल टेक्नोलॉजी में हम पाइनियर है, और ना कि भारत में बल्कि विश्व में भी हम सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को फार्मुलेशन को लेकर के आए। और बुलटोन जो हमारा उत्पाद है वो भी WDG फार्मूलेशन में ही है, और WDG फार्मूलेशन में होने के कारण इसके जो परफॉर्मेंस जो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, स्मॉलर पार्टिकल साइज है 2 से 4 माइक्रोन, 2 से 4 माइक्रोन पार्टिकल साइज होने के कारण जो सरफेस एरिया जो कवर होता है वो ज्यादा कवर करता है ये। और पानी के अंदर जो है इसका यूनिफॉर्म एक समान जो है वितरण, एक समान डिस्पर्सन इसका होता है, और पौधे की सतह पर जो है सरफेस का जो एरिया वो ज्यादा कवरेज होता है, जिसके कारण की पौधे के अंदर अवशोषण इसका ज्यादा होता है। और ज्यादा अवशोषण होने के कारण और WDG फार्मूलेशन में होने के कारण ये
लंबे समय तक और बेहतर कंट्रोल देता है। और इसके साथ साथ जो है इसके अंदर हाई रेनफास्टनेस है, मतलब छिड़काव करने के अगर 2-4 घंटे बाद अगर बारिश भी आ जाती है तब भी जो है इसका जो प्रभाव है वो लंबे समय तक रहता है। अगर हम बात करें वातावरण के हिसाब से तो ये डस्ट फ्री है, इसके अंदर डस्ट नहीं है जिसके कारण इधर उधर उड़ता नहीं है और नुकसान नहीं होता है। और इजी टू स्टोर है, और इजी टू स्टोर और डस्ट फ्री होने के कारण जो है वो पैक को रिंस करने की जरूरत नहीं है, और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। यूनिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। प्रोटेक्टिव, क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव तीनों ही तरीके से जो है ये मल्टीपर्पज फंजीसाइड है, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कंट्रोल देता है बहुत सारी तरह के डिजीज पे। और फाइनर पार्टिकल साइज होने की वजह से और इसका बहुत ही बेहतर डिस्पर्शन होने की वजह से ये एक्सीलेंट कवरेज देता है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो जो वर्तमान में जो उत्पाद है उनकी तुलना में बेहतर है। और बहुत ही एक्सीलेंट इसकी रेन फास्टनेस की विशेषता भी है। और इसको टैंक मिक्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम दूसरे जो है फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड उसके साथ मिला करके भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वातावरण के लिए बहुत ही जो है ये सुरक्षित है, और जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बुलटोन का बहुत ही अच्छा है। तो अगर हम बात करें मिक्सिंग की तो बहुत ही हाई वाटर डिस्पर्सिंग प्रॉपर्टी के कारण ये क्विकली जो है वाटर में डिस्पर्स हो जाता है। और बहुत सारे जो फंजीसाइड्स हैं उनके साथ ये कंपेटेबल है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं इसके प्रयोग की तो ये नंबर ऑफ डिजीज के अगेंस्ट और नंबर ऑफ क्रॉप्स में जो है इफेक्टिव है। और इसको ये जो छिड़काव के द्वारा या सोइल ड्रेंचिंग के द्वारा घोल बना करके और ड्रिप इरिगेशन में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जो इसके इस्तेमाल की मात्रा है बुलटोन की 300 ग्राम से 400 ग्राम प्रति एकड़ या 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम अगर फल वाली फसलों में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके इस्तेमाल की मात्रा है। अगर हम सोइल ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ जो है यूरिया के साथ मिट्टी के साथ मिला करके हम इसको जो है सोइल ड्रेंचिंग कर सकते हैं। बुलटोन जो है बहुत ही ये नोवल मॉलिक्यूल अपने आप में, और ये पेटेंटेड और यूनिक पेटेंटेड WG फॉर्मुलेशन है। और RF टेक्नोलॉजी होने की वजह से हाई रेन फास्टनेस है, और सोइल और फोलियर एप्लीकेशन दोनों ही तरीके से इस्तेमाल इसका हम कर सकते हैं। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है जो कि बहुत सारी फसलों में और बहुत सारे फफूंदीजनित रोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये वातावरण के लिए जो है बिल्कुल सेफ है। और मल्टीपर्पज फंजीसाइड है, जैसा कि हमने बताया। ये प्रोटेक्टिव, क्यूरेटिव एंड इरेडिकेटिव है, और दूसरे फंजीसाइड्स के साथ जो है टैंक मिक्स में बहुत ही एक्सीलेंट है, और इसको इस्तेमाल करके मिक्स करके इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका जो प्रभाव है वो लंबे समय तक रहता है। तो हम अगर बात करते हैं पोजिशनिंग स्टेटमेंट की तो इसका जो फॉर ऑल प्रोग्रेसिव फार्मर्स कंसर्न विद कंट्रोलिंग सोइल एंड फोलियर डिजीज ऑफ देयर क्रॉप्स, बुलटोन इज ए पेटेंटेड सॉल्यूशन फ्रॉम SML प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिव, क्यूरेटिव एंड इरेडिकेटिव कंट्रोल ऑफ डिजीज। नमस्कार साथियों, हमारी कंपनी की तरफ से जो अगला प्रोडक्ट है वो व्हाइट फ्लाई के लिए हमने एक अनोखा प्रोडक्ट आपके लिए लाए हैं। तो उस प्रोडक्ट का पहले आप वीडियो देख लीजिए, एक छोटी सी क्लिप है, उसके बाद हम इस प्रोडक्ट के बारे में आपको आगे बताते हैं। साथियों, ये एक अनोखा प्रोडक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कॉटन की फसल में सफेद मक्खी, जिसको व्हाइट फ्लाई बोलते हैं, उसकी समस्या बहुत ज्यादा है।
तो हमारी कंपनी की तरफ से एक इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन लाया गया है, जिसका नाम है, आपने देखा होगा वीडियोस, पायरोफेन प्लस नाम से है। ये बेसिकली क्या है और बाकी प्रोडक्ट से ये कैसे अलग है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये प्रोडक्ट बेसिकली एक आईजीआर और थायोयूरिया का एक कॉम्बिनेशन है। वो हम बोलते हैं ना, 2 का दम होता है, वैसे ही एक आईजीआर और थायोयूरिया का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो 2 इफेक्टिव मॉलिक्यूल है, पायरोफ्लॉक्सीफेन और डायफेनथ्रोन का ये नोवेल कॉम्बिनेशन है। आपको मार्केट में जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे, या तो पायरोफ्लॉक्सीफेन मिलेंगे या डायफेनथ्रोन मिलेगा। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा एक कॉम्बिनेशन है जिसमें पायरोफ्लॉक्सीफेन और डायफेनथ्रोन दोनों है। ये बाकी प्रोडक्ट से अलग कैसे है, आप देखेंगे। पायरोफ्लॉक्सीफेन जो डिफरेंट स्टेजेज ऑफ व्हाइट फ्लाई होते हैं, एग है, निम्फ है, अडल्ट है, हर स्टेज पे काम करता है। उसके साथ दूसरी जो मॉलिक्यूल है वो अडल्ट और निम्फ पे काम करता है। तो ये प्रोडक्ट टोटल एज ए पैकेज काम करता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेज को काम करता है, या व्हाइट फ्लाई में एग को मारता है, अडल्ट को मारता है। एक से लेके निम्फ अडल्ट टोटल स्टेज को कवर करता है, इसीलिए इसको हम यूनिक प्रोडक्ट बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ आईजीआर। अभी ये फॉर्मुलेशन की हम बात करते हैं। ये प्रोडक्ट बाकी जो मार्केट में आपको प्रोडक्ट है उससे अलग कैसे मिलता है, इसको हम एसई फॉर्मुलेशन बोलते हैं। एसई बेसिकली है क्या, सस्पो इमल्सन टेक्निकली बोला जाए। सस्पो इमल्सन्स में आप देखेंगे बिल्कुल जो नॉवेल केमिस्ट्री होती है, एससी जो हम बोलते हैं एडवांस केमिस्ट्री है, और ईडब्ल्यू इसका कॉम्बिनेशन है। इसकी कॉम्बिनेशन होने से फायदा क्या होता है, आपको आईजीआर और जो इंसेक्टिसाइड है उसकी कॉम्बिनेशन होने से टैंक मिक्सिंग को आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती है। उसके साथ साथ एक ही मॉलिक्यूल से हर स्टेजेस को कंट्रोल करते हैं। दूसरी सबसे खासियत इसका क्या है, आप देखेंगे ये इंडिया का फर्स्ट प्रो इंसेक्टिसाइड है। प्रो इंसेक्टिसाइड क्या होता है, आप जो भी इंसेक्टिसाइड है, जब इंसेक्टिसाइड कोई भी व्हाइट फ्लाई खाता है ना, खाने के बाद उसके अंदर एक्टिव होता है और व्हाइट फ्लाई मरता है, इसलिए इसको ना प्रो इंसेक्टिसाइड बोला जाता है। आगे इसको हम सीधा लैंग्वेज में बोला जाए तो बोलते हैं ऑल राउंड परफॉर्मेंस है। ऑल राउंड का मतलब क्या होता है, एक तो क्या होता है, इंसेक्ट जो भी कीड़ा व्हाइट फ्लाई है वो इसको खाता है तो मरता है। दूसरी चीज है क्या, जो ये डिफरेंट स्टेज ऑफ व्हाइट फ्लाई उसको कंट्रोल करता है। उसके साथ क्या है, खासियत इसकी क्या है, बाकी का व्हाइट फ्लाई का जो भी मार्केट में दवा है यूज करते हैं, उसकी कंट्रोल आपको नॉर्मली 7 दिन से लेकर 10 दिन होता है। बट इसका आईजीआर एक्शन होने की वजह से इसकी कंट्रोल आपको एवरेज 8 दिन से लेके 20 दिनों तक इसकी कंट्रोल रहती है। दूसरी चीज, ये दवा मेनली है पायरोफेन प्लस सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई के लिए है, लेकिन उस स्टेज पे आप जानते होंगे एफिड का भी अटैक होता है, थ्रिप्स का भी होता है। तो मोर और लेस 70-80% बाकी के जो दूसरे भी एफिड जेसिड हैं उसको भी ये कंट्रोल करता है। यहाँ तक डोज की बात किया जाए तो कॉटन क्रॉप में आप देखते होंगे जो 40 to 60 डेज के स्टेज में क्रॉप छोटा होता है, तो वहाँ पे 300-350 ml की डोज होती है। जब क्रॉप बड़ा होता है तो 500 ml की डोज होती है। तो जो इसकी डोज बनाई गई है पर एकड़ 350 ml से 500 ml की डोज बनाई गई है। उसी हिसाब से किसानों की और आपकी सहूलियत के हिसाब से हमने जो इसकी पैकिंग डिजाइन की है, 100 ml का, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर का। बेसिकली जो बड़ी पैकिंग है वो कपास कॉटन के फार्मर्स के लिए है। जो छोटी पैकिंग है 100-250 ml, वो जो छोटे फार्मर्स हैं जो इनका एकरेज कम होता है, वेजिटेबल्स का है, उस हिसाब से छोटी पैकिंग की गई है। मेनली मुख्य तौर पे जो आप फसल देखेंगे तो आपने उसमें कॉटन, चिली, इसके अलावा भिंडी है, और जितनी भी वेजिटेबल है जहाँ पे व्हाइट फ्लाई का प्रकोप है उसके अगेंस्ट ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। मैं जितनी चीज बताया उसको एक समरी फॉर्म में बताऊं तो ये पायरोफेन प्लस एक यूनिक केमिस्ट्री है जिसमें आईजीआर और एमआरआई का कॉम्बिनेशन है। ये नोवेल फॉर्मुलेशन, एससी फॉर्मुलेशन है। इसकी खास बात क्या है, आप एज ए बिजनेस पार्टनर आप समझेंगे इसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। 2 चीज है मेनली समझने के लिए। एक तो क्या है, आईजीआर एक्शन होने की वजह से इसकी जो लॉन्जेविटी होती है वो ज्यादा दिनों तक होती है। दूसरी क्या होती है ना, कॉम्बिनेशन होने की वजह से
ये डिफरेंट स्टेज ऑफ जो व्हाइट फ्लाई है उसको कंट्रोल करता है। तो ये दोस्तों ये दो खास बातें हैं ना जो कि बाकी के सफेद मक्खी के प्रोडक्ट है ना उससे इसको अलग करती है। एक तो क्या ये डिफरेंट स्टेजेज ऑफ व्हाइट फ्लाई है उसको खत्म करती है। दूसरा क्या है इसकी जो काम करने की क्षमता है वो लंबे समय तक रहती है। ये दोनों खासियत है। तो इसको शॉर्ट में बोला जाए तो सफेद मक्खी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको। जो सारे सकिंग कॉम्प्लेक्स है तो एक दवा से सारे चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं सफेद मक्खी के। तो आप लोग इस दवा का उपयोग कपास हो या बाकी का फसल हो उसमें सफेद मक्खी के लिए व्हाइट फ्लाई के लिए जरूर करें। थैंक यू। दोस्तों अब हम अपनी लाइन आपके सुझावों को और प्रश्नों के लिए खोलने जा रहे हैं। अगर आपके कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम आपके सुझावों और प्रश्नों को जानने के लिए उत्सुक है।